تفصیل یوم شہداء کس موقع پہ یہ آج انتظامیہ طرف مزار شہداس اند پک سیکورٹی ہند سخت بندوبست کرنے آمت یتھ دوران مزار شہداس اند پک خاموشی وچھنا آئی تتہ مزار شہداس پہ کس تہ سیاسی سماجی یا مذہبی جماعت فاتح خانی کرنک آز اجازت دن آمت یہ کات باون لائق زی یہ وری 2019 برو یہ دہ سرکاری سطح پہ مناؤن تو عام چھٹی آسن باوجود مزار شہداس پہ تقریب منعقد سپدت شہدان خراج پیش کرنے تاہم جموں کشیر ہند خصوصی درجہ ختم سپدن پتہ نہ صرف سرکاری چھٹی منسوخ کرنا آمز بلکہ مزار شہداس پہ گھنس تہ پابندی عائد کرنا آمز یپر یہ آج جموں کشمیر اپنی پارٹی ہندو لیڈروں تو ورکروں طرف مزار شہداس کن گھنچ کوشش کرنے آمز تاہم پولیس طرف یہ کوشش ناکام بنانا آمز یل زن پی ڈی پی تو نیشنل کانفرنس پارٹی طرف پارٹی ہیڈ کوارٹرن پہ امہ حوالہ تقریباً ہند سنز کرنا آو یتھ دوران پارٹی لیڈروں تو ورکروں طرف 1963 کن شہیدن زبردست الفاظن مز خراج پیش کرنا آو یدوے یمن سیاسی جماعتن ہندو لیڈروں تو ورکروں طرف تہ مزار شہداس کن گھنچ کوشش کرنے آمز تاہم پولیس طرف یمن جماعتن تہ اجازت دن آمت یل زن میر وائز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق آج انتظامیہ طرف خانہ نظر بند تھونے آمت یتھ دوران تہندس رہائشی مکانس اند پک فورسز اہلکارن ہز اضافی نفری تہ تعینات کرنے آمت مرکزی سرکار طرف یہ جموں کشیر ری آرگنائزیشن ایکٹس مز مزید ترمیم کر تتہ آج جموں کشمیر اپنی پارٹی طرف سرینگرس مز پریس کانفرنس سانز کرنا آمت یتھ دوران مرکزی سرکار کے فیصلہ نقطہ چینی کران ون آو زِ مرکزی سرکار جموں کشیر ہندن لوکن ست نہ صرف مذاق بلکہ نا انصافی کرنے یل زن پارٹی سربراہ محمد الطاف بخارین ات موقع پہ تمام جموں کشیر ہن سیاسی جماعتن وون زِ ات مسلس حوالہ پزِ اسہِ اِکوٹ آواز بلند کریں یُتھ زن سٲنِس مستقبلس سۭتۍ کھلواڑ سپدِ پارلیمنٹ میں کہا گیا اسٹیٹ بحال کیا جائے گی سپریم کورٹ نے لاسٹ ایئر ڈیسیجن دیا کہ اسٹیٹ بحال ہو جائے گی پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر صاحب نے ہمیشہ بولا لیکن کل جب ہم اس ایکٹ کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کھوکھلی اسٹیٹ دینا چاہتے ہیں جس میں کوئی بھی پاورز کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوں گے ڈیموکریسی میں شاید یہ ایک مذاق ہے اور اگر جو کہتے تھے کہ دلی اور دلوں کی دوری دور کرنی ہے اگر اس کا مطلب یہی ہے تو کم از کم جموں کشمیر کے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں جموں کشمیر کی جو اپنی اسمبلی ہوا کرتی تھی یہ سب سے پاورفل اسمبلی تھی اگر اب پاورفل سب سے نہیں ہوگی کم از کم ویسی ہو جیسی باقی ریاستوں میں ہر ریاست میں اسمبلی ہے اگر اس کو پہلے ہی اس کے دانت ٹوتھ لیس ٹائیگر ایک چیف منسٹر یہاں کا کھڑا کرنا ہے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے دھول جھونکنی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ جموں کشمیر کے لوگوں کا حل ہوگا یہ جو ڈیولپمنٹ ہے ہماری جماعت بیٹھی سینئر قیادت آپ دیکھ رہے ہیں پوری سینئر قیادت یہاں ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم انیشیٹو لیں گے ہم سب سے چھوٹی جماعت اور سب سے نئی جماعت ہیں ہم اپیل کرتے ہیں جموں کشمیر کی سبھی سیاسی جماعتوں کو یہ کسی انفرادی طور کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی بقا کا مسئلہ ہے کل ہمارے آنے والے نوجوانوں کا مسئلہ ہے یا ہماری جو بچیاں ہیں باقی رہنے والے ہیں تو میں سب سے اپیل کرتا ہوں ہمیں مل بیٹھ کے اپنی پولیٹیکل ڈفرینسز کو سائیڈ میں رکھ کے اکٹھے ہو کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے یہ انشور کریں کہ جو ریاست ہمیں واپس ملنے والی ہے وہ کھوکھلی نہ ہو اس میں پورے وہ پاورز ہوں جس سے ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں کل کوئی بھی پارٹی یہاں آ سکتی ہے بنا اس کے کون وہ تو لوگوں کا فیصلہ ہوگا لیکن اگر ایسے ہم بٹے ہوئے چلیں گے تو شاید رون ڈالیں گے مسل ڈالیں گے جو روندنے اور مسلنے کے لیے ہمیں نکلے ہیں اگر ہم آج بھی نہیں اٹھیں گے تو پھر ہم کبھی نہیں اٹھ سکتے تو ایک چیز بتاؤں گا میں نے اپیل کی ہے سبھی پارٹی سے ہم سبھی پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں گے اور جو یونانیمس فیصلہ ہوگا ہم ان کے ساتھ جائیں گے ہم انڈیویجول اگر میں پہلے ہی کہوں گا پھر کس لیے میں ان کو بلا رہا ہوں یہ یونانیمسلی ہونا چاہے جو بھی ہونا چاہے یونانیمسلی ہونا چاہے اور جو یونانیمسلی ہو جائے گا اگر یونانیمسلی یہ ہوگا کہ اٹھا کے چھلانگ مارو دریا میں آئی تھنک وہ بہتر ہوتا ہے اس سے کہ نہیں صاحب ہمیں کوئی اور چیز کرنی چاہیے دیکھیے اس آرڈر کے سے دو چیزیں ہیں
होती हैं। एक 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आज क्यों ज़रूरत पड़ी, अमेंडमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को हुडविंक किया जाता है, पार्लियामेंट को हुडविंक करने की कोशिश की जा रही है कि स्टेट हुड आ रही है, इट वुड बी। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर मुजफ्फर हुसैन शाहन हुक्मनामे हवाले कत करान वोनमुत यह अफसोसुक मुकाम अकि तरफ जम्मू कश्मीर हंदन लूकन बड़ ख्वाब हावन तो दोयमि तरफ ये हुक्मनामे जारी करने। जब तक ये एक यूटी है, हमारे लोगों को इन चीज़ों से अब घबराहट नहीं होती है। जिस दिन यहाँ पे स्टेटहुड कायम होगा, ये तमाम ऑर्डर, और जिस दिन यहाँ इलेक्शन आप करेंगे, इसको यूटी को आपको स्टेट बनाना ही बनाना है, क्योंकि पार्लियामेंट में हमारे अमित शाह साहब ने ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्रॉमिस किया है हिंदुस्तान के 100 करोड़ आवाम को कि जम्मू कश्मीर विल बी ए स्टेट। स्टेट बन गया, इलेक्शन हो गया, छुट्टी हो जाएगी यहाँ से। जितने भी ये ऑर्डर आप कर रहे हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं, इनको उठा के हम जेल में फेंक देंगे। और तब तक कोई बात नहीं है। अगर आप यूटी में भी इलेक्शन कराना चाह रहे हैं, आपको इतना बता दिया जाएगा, जम्मू से भी कश्मीर से भी बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। पब्लिक will answer your these orders and your these reorganization acts and these amendments. They will answer them by their vote. इसलिए मैं अपने सियासतदानों से भी, जो हमारे भाई बंधु यहाँ हैं, इस पर शोर शराबा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमने पहले भी आपसे कहा था, इकट्ठे मिलकर अगर आप एक ही रस्सी को खींचते तो ये सब चीज़ों आज तक हमने इनका तदारुक ढूंढ लिया होता। मगर खैर, अब आप सब अपने अपने इलाके जा रहे हैं, तब भी यहाँ का आवाम जिस तरह से पार्लियामेंट के इलेक्शन में उनने जवाब दिया, उसी तरह से वो कमर बस्ता है। इलेक्शन का जवाब वो दे देंगे। आपके असेंबली का इलेक्शन जब भी होगा, आपको यूटी को स्टेट में तब्दील करने के बजाय कोई चारा नहीं है। उस वक्त ये तमाम ऑर्डर्स आपके एक झटके में रद्द कर दिए जाएंगे। ये मेरा कहना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, बड़े अदब और एहतराम से मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप करते जाइए। इन चीज़ों से आप बीजेपी की उनकी जो छवि यहाँ पे बर्बाद। जम्मू कश्मीर मजीद सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदन सिलसिल बदस्तूर जारी। तब आज सुबह डोडस मज हादस पेश आमुत, यथ दौरान 2 शख्स जां बहक तो मजीद कई जख्मी सपद। वन ठाठरी पे गंदू गसन वाजने अकिस मुसाफिर बस तम सात मलिकपुरा बुटनियास वतित हादस पेश आमुत, ये गाड़ी ड्राइवर सद कोबू नबर सपदित अकिस खाई मज लाइन आई। यदवे हादस पेश यन सती बचाव कार्रवाई शुरू करना आई। यथ दौरान 17 खोत ज्यादा जख्मी इलाज मुआलज बापत हस्पताल मज दाखिल करना आय। ताहम 2 शख्स जख्मन हज दाग नवतरन किन जां बहक सपदम। ये जन पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आओ। गुंदो के बटियास इलाके में आज सुबह ही एक मेटाडोर का एक्सीडेंट होता है, और सुबह ही हमने आपको अपडेट दिया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। एक महिला थी जो आंस पार्टी, उसकी मौत हुई थी, और लगभग 11 लोगों को मेडिकल कॉलेज डोडा शिफ्ट किया गया है। एशिया डोडा खुद मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर पहुंचे हुए हैं, और डिप्टी कमिश्नर डोडा खुद बटियास इलाके में स्पॉट पे भी हैं। सर, क्या बताना चाहोगे आप, जब इनको शिफ्ट किया आज, तो तब से ही आप मौके पे मौजूद हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं, अभी किस तरह की कंडीशन बनी हुई है? आज सुबह 10 बजे के आसपास जो है हमें एक बड़ा ही एक दुखद वाकया जो है वो गुंदो सब डिवीजन के एरिया से सामने आया कि मतलब वहां पर एक कालजुगासर से ठाठरी आ रही एक मेटाडोर जो है वो बटियास नाम के जगह पर जो है वो एक्सीडेंट का शिकार हुई। तो अभी तक की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से गाड़ी में जो है तकरीबन 28 लोग जो थे मौजूद थे, जिनमें से अभी तक जो है 2 लोग जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो स्टार्टिंग में सभी इंजर्ड जो थे वो उनको गुंदो के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। तो वहां से 11 लोगों को जीएमसी डोडा में जो है वो रेफर किया गया है, जो ये, और बाकी 15 लोग जो है वहीं पर गुंदो हॉस्पिटल में जो है अभी है, जहां पर उनका जो है वो इलाज चल रहा है और फर्दर ऑब्जर्वेशन में वहां पर हैं। जो यहाँ पर 11 लोग जो है जीएमसी डोडा में जो आए हुए हैं, वो भी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में है। डॉक्टर्स की टीम जो है उनको देख रही है।
अभी तक एक ऐसा पेशेंट है जिसको अभी हम इमीडिएटली जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, जम्मू रेफर कर रहे हैं। तो बाकी जो लोग हैं तो वो उन पर भी अभी डॉक्टर जो है वो अपनी निगरानी में बनाए रखे हुए हैं। तो जो भी कुछ वैसा केस अगर और भी होगा, किसी को जम्मू शिफ्ट करने की अगर जरूरत महसूस हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको इमीडिएटली जो है वहां पर शिफ्ट कर देगी। सर क्या हम बताएं कि क्या कोई कारण लग पाया पता कि किस कारण ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई है? अभी ट्रैफिक अथॉरिटीज को, रेआरटीओ को डायरेक्शन दे दी गई है कि इस पूरे मामले की जो है वो जांच कर लें। तो जैसे ही उनकी रिपोर्ट आ जाएगी तो हम नेचुरली आप लोगों के साथ भी उसके बारे में शेयर अक्सर करेंगे। इलाकों से ये खबर मिलती है जब हादसा होता है कि क्रैश बैरिगेड्स नहीं है, रास्ते की सही कंडीशन नहीं है, किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, इसमें तो वक्त वक्त पर तो हमारी रोड सेफ्टी मीटिंग्स भी वगैरह होती हैं और इन चीज़ों पर जो है खासा ध्यान रखा जाता है। फिर भी हम थोड़ा सा इसको रिव्यू करके जो है वो फिर भी जो भी करेक्टिव मेजर्स होंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनको जो है क्या वो देखते इसमें कोई ओवरलोडिंग वगैरह थी गाड़ी में या कोई रैश ड्राइविंग हो रही थी? हैं। ये तो अब एआरटीओ और ट्रैफिक एसपी डीएसपी साहब की जो रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही सारी चीज़ों का खुलासा होगा। तो जैसे रिपोर्ट आएगी तो हम आपके साथ भी वो शेयर करेंगे। आखिर में आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उनको करना चाहिए? हर दिन हम देखते हैं कि हफ्ते में 2-3 एक्सीडेंट होते हैं, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? ये पूरी चिनाब वैली की एक बहुत ही एक हमारा जो है एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। तो मेरी पूरी चिनाब वैली के लोगों के साथ और पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों के साथ ये गुजारिश है, खासकर ड्राइवर के साथ भी, कि मतलब एक तो ड्राइवर्स के रेश ड्राइविंग से बचे रहें और गाड़ी चलाते वक्त जो है मोबाइल का यूज भी काफी फेटल साबित हो रहा है। और लोगों के साथ भी ये रिक्वेस्ट है, उनकी भी अपील है कि मतलब ओवरलोडिंग करने से ज्यादा बचें। तो ये मेरी लोगों के साथ ही अपील होगी, तो जिसमें हमें मीडिया का भी सहयोग की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एशिया डोडा यहाँ पे मौजूद हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि इस गाड़ी के अंदर कितने लोग सवार थे और साथ साथ में मेडिकल कॉलेज के अंदर 11 लोगों को पहुंचाया गया है और 2 लोगों की मौत हुई है। तो कोशिश हम करेंगे यहाँ के जो जिला के डिप्टी कमिश्नर हैं उनसे भी बातचीत करने की, कारण जानने की, और कारण के लिए जो टीमें भेजी गई हैं वो जल्द से जल्द रिपोर्ट करेंगे और साथ साथ में मीडिया। जम्मू कश्मीर तो लद्दाख हाईकोर्ट जज वसीम सादिक नरगलन कपवार दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा अदलीक दोयम जिम्मेदार ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो कोर्ट कम्प्लेक्स कपवार के कामकारुक जायजे हो तत तिमो अदालत कार्रवाई हज साम हेचम जन तिमो अत मौके पे वोन ये अदालतन मज जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल अमल मज अन तत बुनियादी ढांचे मजबूत करने युत जन इंसाफ फराहम करनस मज आसानी सपदे। अत मौके पे ये कपवार पुलिस तरफ मौसूफस गार्ड ऑफ ऑनर पेश करना आव तत अत मौके पे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कपवार मोहतरमा शाजिया तबसुम, एडिशनल सेशन जज हंदवोर, उम्मी कुलसुम तो दोयम जिम्मेदार ते मौजूद। देखिए, जस्टिस वसीम नरगाल जी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस है वो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लिए। आज वो जायज़ा लेने आए थे कि यहाँ पे एक कोर्ट कम्प्लेक्स का काम चल रहा है और बाकी जो पेंडिंग इश्यूज़ है रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी है, प्रोसिक्यूशन में बिल्डिंग्स की कमी है या स्टाफ की निचले स्टाफ की कमी है, बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने उनका जायज़ा लिया और साथ साथ में उन्होंने डायरेक्शंस की कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी कुपवारा, आरएनपी, पीएचई, to cover up all those issues which are pending since long. And Deputy Commissioner Kupwara, she has already done a commendable job here for upgradation of district bar room, for more such things apart from this bar room. And she had assured Justice Nargal Saab for further commendable job on her part. I hope मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज इश्यूज टच हुए मीटिंग में और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से एश्योरेंस दे दी कुछ इश्यूज को कंप्लीट करने के लिए, कुछ इश्यूज को हल करने के लिए, तो इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएंगे आने वाले वक्त में। और जो भी डायरेक्शंस पास हुई तो उन पे भी ऑनरेबल जस्टिस की तरफ से जो भी नोडल ऑफिसर्स बनाए गए वो भी उन इश्यूज को अब पूरी रिस्पांसिबिलिटी रखी गई है नोडल ऑफिसर्स पे, तो वो भी जो नोडल ऑफिसर्स है उनको भी अपना रिपोर्ट कंसर्न जस्टिस को पेश करना है। तो ये एक मीटिंग बहुत अच्छी मीटिंग रही जिसमें जस्टिस नरगाल साहब, वसीम नरगाल साहब ने बहुत अच्छे से जायज़ा लिया
और बार से भी इंटरेक्शन की, बार के मसाइल जो हैं वो भी उन्होंने सुने, और इंशाल्लाह वो और भी यहाँ पे आना चाहते हैं आने वाले वक्त में। और हमें यही उम्मीद है जो इश्यूज़ बार के हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या बाहर के जो भी इंटरनल इश्यूज़ हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ हैं, वो हमें यही Secretary Administrative Reforms, Inspections and Trainings Department Jammu Kashmir Dr. Abdul Kabir Darn Chaz Government Medical College Handwaruk दौर कोरमुत या दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद है। दौरस दौरान ये तिमो जारी काम हिंस साम हिंस तज तिमो वोनमुत जे जारी काम मुकम्मल करने हवाले संजीद कदम तुलने यवान युद्ध जन आम लूकन राहत वाति। आज आई यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा में हमारा जो इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि हमें ग्राउंड में देखना है हो क्या रहा है, ग्राउंड में क्या डिफ़िकल्टीज़ है, ठीक है, जो हमारा डे टू डे काम यहाँ पेशेंट केयर है इसमें कौन कौन सी मुश्किलात है और क्या क्या चीज़ें जो हम सजेस्ट कर सकते हैं उसको ठीक कर सकते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है गवर्नमेंट में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और इंस्पेक्शन होता है हर साल और साल में 1-2 बार होता है। तो उसमें ये देखते हैं हम कि जो फंक्शनिंग है ओवरऑल के स्टाफ से लेके अटेंडेंस से लेके ये बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, बाकी चीज़ें सारी चीज़ें जो भी रिलेटेड है एक इंस्टीट्यूशन के साथ इनको हम ऑन स्पॉट जाके देखते हैं। जैसे अभी आपने देखा हमने बिल्डिंग देखी, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, अभी ये नया इंस्टीट्यूट बन रहा है, अभी समझ लो कि ये यंगेस्ट मेडिकल कॉलेज बन रहा है और इसमें जब मेडिकल कॉलेज बनता है तो एक इसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अपने तरीके से जो भी हमारे रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके लिए आप देख रहे हैं बड़ा कैंप्स वहाँ पे बन रहा है उसका बाईपास पे, तो वो भी आपने देखा। यहाँ पे 6 मंजिला जो इमारत बनी है इसमें कुछ कोर्ट केसेस है तो वो भी हम देखेंगे। इसको हमें फंक्शनल बनाना है, तो जो यह नया जो पुरानी बिल्डिंग है डिसमेंटल हो रही है तो यहाँ गायनी वार्ड उनको शिफ्ट करना है इधर, तो उसके लिए कैसे ये शिफ्ट करें, उसके लिए इनकी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे रैंप नहीं है, यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, तो पहले इन चीज़ों को एड्रेस करना है। इसी सिमत में हम आज पूरा जो है इस डिस्ट्रिक्ट में इसमें कोई इशू नहीं है। खंडर तो जब भी कंस्ट्रक्शन होती है, जब भी कहीं पे आप डिसमेंटल करेंगे तो आपको अपेरेंटली खंडर दिखेगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे एक फ्यूचर में अगर आप 3D मॉडल देखेंगे एक इतना खूबसूरत कैंपस आपको दिखेगा। बट जो टेक्निकल आप बोल रहे हैं इस बिल्डिंग में क्या नहीं शिफ्ट हुआ है, इसमें कोर्ट का कुछ ऑर्डर है वो हमने देखा नहीं, अभी डिस्कस हुआ है अथॉरिटीज के साथ, तो वो हम पेपर्स में देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे, कोर्ट के साथ जो भी है उसको परस्यू करेंगे उस केस को, तो उसको स्टे वेकेट करके इंशाल्लाह ये प्रायोरिटी है। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि दिक्कतें क्या है ग्राउंड में। कोर्ट का कोई चीज़ आ जाता है तो उसमें कोई कमेंट होता नहीं है, उसके हमारा बनता ही नहीं उस पर कोई कमेंट करना। बाकी जो आप देख रहे हैं अपने सामने पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कन्वर्ट हो गया मेडिकल कॉलेज में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है। कोई भी चीज़ डेवलप करने के लिए अभी मेरे पास दूसरा बैच आया है यहाँ पे, तो कोशिश है गवर्नमेंट की कि किसी तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। आपने देखा इक्विपमेंट्स आए हैं, सारे मशीनरी आई है, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें कुछ टाइम लगेगा। कपवार के मुख्तलिफ सरहदी इलाकन में रोजन वाले लूको तरफ आज कपवारिस में AEE सिंधिस आफिसस ब्रोकन एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमे बिजली खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत यदि बिजली फीसस में बेतहाश इजाफा कर आमुत, लूको तरफ मुतलिक महकम जिम्मेदार अमे हवाले जान दिन आय, ताहम कह कदम तुलने आमुत यम लूक सड़कन पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लूको तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमद से अत मामलस कुन गज जोन दुनियन युद्ध जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करनी। आज जो हमारे AEE साहब का जो ऑफिस है कुपवारा टिक्कर में हम यहाँ पे मौजूद है। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो लोग भी आए हुए हैं, पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से जो इन्होंने एक जुल्म है, जो एक गरीब के गले पे एक छुरी रखी हुई है, वो इस डिपार्टमेंट ने रखी है। और ये लोग ये चीज चाहते हैं कि जो गरीब आदमी है उसको पे एक जुल्म किया जाए, उसको दबाया जाए, उसको मारा जाए। अब जो है इन्होंने एक फ्लैट रेट लगवाया हुआ है। हम आज यहाँ पे आए हैं बड़ा पीसफुली, जो हमने प्रोटेस्ट रखा था, एक्शन साहब से रिक्वेस्ट करी। हालांकि मीटिंग के अंदर इनके जो SC साहब है उन्होंने खुलेआम इनको कहा कि जो लोग 0.25 यानी कि 108-113 को डिजर्व करते हैं
तो आप उन पे वो वाला इंप्लीमेंट करिए। खुद मीटिंग के अंदर बता के गए, लेकिन इनको कोई टस से मस नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, और AEE साहब कहते हैं मैं क्यों करूं, मतलब ये क्यों क्या होता है। और आज इसी सिलसिले में हम इधर अंदर आए। यहाँ पे पहली बात तो यह है कि AEE साहब इधर मौजूद नहीं है। हम उनसे ये चीज चाहते हैं कि जो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने किया है, हम भी ये चीज देखना चाहते हैं, और हम जानना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया हुआ है, पहाड़ों पे बसने वाले लोगों पे के गर्दन पे जो छुरी रखी हुई है, वो ऑर्डर ही हमें दे दे। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 15-20 दिन से कंटिन्यूसली मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वो ऑर्डर हमें प्रोवाइड करिएगा, लेकिन ये लोग नहीं दे पा रहे। आज भी अभी कह रहे हैं कि AE साहब जो है वो वापस आ रहे हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं। हम ये चीज चाहते हैं कि आप हमें वो ऑर्डर दीजिएगा कि जिस ऑर्डर में ये लिखा है कि आप एक गरीब का जो है गला घूंटिए, गला दबा के उसको मारिए। ना हमें 520 मंजूर है और ना हमें जो है इनका 1040 मंजूर है। जब तक ये इस सिस्टम से बाज नहीं आते, तब तक हम भी अब बाज आने वाले नहीं है। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है, मतलब यहाँ पे अगर कुपवारा की हम बात करें तो ये बेबसी और बेकसी के मारे हुए लोग हैं। ऑर्डर किसने किया? LG साहब के ऑफिस से आया है, किसी कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के ऑफिस से आया है। सेक्रेटरीट का कोई ऑर्डर है तो ये हमें दे दे, हम भी इनसे चाहते हैं आप ऑर्डर दिखाएं। बात वाली बात हो रही, जब पूछा तो ऑर्डर ऊपर से आया। अब समझ में नहीं आया कि अल्लाह वादी कशीर मज ये खुशक मौसम रोजन सहित दर्जा हरारतस मज इजाफा वुचन तत खुशक मौसमुक असर हार्टिकल्चर तो एग्रीकल्चर सेक्टरस पे नजर गसान। ये जन पुलवमिस मज बागवालियों तो जमींदारों तरफ मायूसी हूं इजहार करान वन आव जो खुशक मौसम रोजन सहित ये फसलस तो सब्जियन नुकसान सपदमुत तत मेव बागन हज हालत अबतर सपजम यम सहित मेवस नुकसान वातनुक त खदश पैदा सपदमुत। देख सकते हो कैसे मतलब सेबों में भी जैसे ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, मतलब सब्जियां नहीं हो रही है, पानी की लेवल बहुत कम हो रही है, तो बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे इसकी वजह से। अगर बारिशें नहीं हुई वक्त पे तो बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाएंगे, किसान लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल होगा। सबसे बड़ा मसला होगा पानी का, पानी कम हो जाएगा इसकी वजह से। और मसला है कि इससे ज़्यादा ये बीमारियाँ बढ़ जाएंगी, ये गर्मी जब बढ़ जाएगी तो बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम क्वालिटी में भी असर पड़ जाता है कि जैसे हम देखो सेबू पे ज़्यादा ये ज़्यादा धूप पड़ जाएगी तो इसका जो ऊपर वाला जिल्द होता है वो जल जाता है, उसमें भी बहुत असर जाता है, क्वालिटी में भी असर पड़ जाता है इस गर्मी से। तो बारिशें नहीं होगी तो क्वालिटी भी नहीं बन जाती, बारिशों के बगैर क्वालिटी भी नहीं बन जाती। बस हमें लास्ट एडवाइजरी मिली थी कि इरिगेशन करो, फ्लड इरिगेशन करो अपने बगीचों में, और फ्लड इरिगेशन से ही आपके बागीचे बच जाएगी क्योंकि बहुत डिहाइड्रेशन हो रही है प्लांट्स में, जैसे पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो अभी वही कर रहे हैं, बाकी कुछ कोई और हमें इसका कोई एडवाइजरी नहीं मिली अभी तक। ताव गज खुशक साली 3 रेत गई रूद पेनसी, ताव गज बचन ऊँटन बेमार, दान त बन क्या दानस ताव, सब्जी वब्जी गई खत्म, लीप माइनर गसान सोई बेमार पे स्कैब गसान ऊँटन, ताव गसान पे मार्केट तक बत कहें ऊँट 2 नंबर क्या हाक वो तुम सब्जी वो कह टंगमर्गी मज आज मुख्तलिफ रजाकार तंजीमों तरफ मुश्तरक पे ब्लड डोनेशन कैंप साज कर आमुत यथ मज रजाकार तंजीमन हिंद जिम्मेदारों अलावा मुकामी नौजवानों शिरकत कर। अत मौके पर ये रजाकारों तो नौजवानों तरफ खून कती पेश करना आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत खून दिन इंसानी फर्ज तो प्रत अकिस पज यह फर्ज अदा करनस मज पहल कर युत जन जरूरत विज इंसानी जू जाय सपदन निश बचाव यन। हमारा जो कैंप है केयर फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट का जो कोलाब्रेशन, जिसमें हमारे जो कोलाब्रेशन है LD और जो कोलाब्रेशन है ATV राइडर्स, जो हमारे मोहम्मद सुबान साहब हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट, इनके सपोर्ट से हमने यहाँ पे कैंप किया। इनका जो सपोर्ट है, इसका अगर हम फीडबैक देखेंगे, फीडबैक इसका यही है कि यहाँ पर बहुत सारी अवेयरनेस हो गई है। तो इसलिए मैं लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लड डोनेशन में डोनेट करें ब्लड। मेरे ख्याल से मेगा कैंप हुआ है ब्लड के हवाले से, रद्दान के हवाले से, क्योंकि अगर हम अपना ये रद्दान डोनेट करेंगे क्या पता आगे जाके इससे किसी की जान बच सके, किसी को फ़ायदा ही पहुंचाए। ये एक अच्छा पहलू है हमारे टंगमर्ग में। मैंने आज से पहले इतना बड़ा मेगा इवेंट नहीं देखा है, मैंने भी इसमें शिरकत की है। डॉक्टर सरवत मुजफ्फर, ब्लड बैंक ऑफिसर, LD हॉस्पिटल श्रीनगर। आज हम यहाँ पे आए हैं ब्लड डोनेशन कैंप के लिए कि केयर फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट वालों ने जो ऑर्गेनाइज़ किया था इन कोलैबोरेशन विद LD हॉस्पिटल। तो हमारा यहाँ पे अभी तक जो रेस्पॉन्स रहा है ब्लड डोनेशन का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहा है। लगभग अभी तक हमारे 62 ब्लड पॉइंट्स हमने कलेक्ट किए हैं। रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, डोनर्स भी वॉलंटरली अच्छे से आ रहे हैं। ये ब्लड जो हम यहाँ से ले जाएंगे, इस
बहुत ही हमारे लिए मुफीद है, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि एलडी हॉस्पिटल बीइंग ए टर्शरी केयर हॉस्पिटल, रेफरल वगैरह हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा आते हैं, पेशेंट्स भी होते हैं जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, उनको ब्लड की इतनी अशद ज़रूरत होती है कि कभी कभी तो हमें एक एक पेशेंट के लिए 10-10 पॉइंट फ्री करने पड़ते हैं. वी हैव टू प्रोवाइड. और हम एक पेशेंट के लिए 10 डोनर तो नहीं मांग सकते हैं. अगर डोनर आए, 1 या 2 डोनर आए, बाकी 8 ब्लड पॉइंट्स हम अपने ब्लड बैंक में से, और वो हम तब भी पॉसिबल हो सकता है जब हम ये ब्लड कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं. और ये ब्लड इवन जो छोटे हैं या बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब बहुत ही गर्मजोशी के साथ आके यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं. हालन कोकरनाग लूक ये पत्म कई काल पे संगरन पे हालन ताम सड़कें हज शहर पर कर इंतजामिया मंग करान तत इंतजामिया तरफ सड़कें हज शहर पर हवाल कदम तुलना आमुत यथ दौरान सड़क पे तारकोल वहरावन काम जारी ये जन मुकमी वन आव यह कदम तुलने सत वात कईहन इलाकन मज रोजन वाल लूकन सठई राहत. डिपार्टमेंट यमो दी यह सा यह मांग दूर लगभग न सलम बे असल पे मशगूल PWD यमो यह दीन कम हल कर तो बाकी यसान बकाया सह मांग कर दो सह हल कर तो गो आजाद नश गवर्नमेंट खास कर R&B मैगडम बह वस लग 40-42 वो मे वो जाही यप मैगडम गसन क्या बे गुलिस्तान नमद अस अत मन शुक्रगुजार इन खुद तो पुरसान तुल रोडस हाल पुरसान तुल खुद बाकी मुलाजिम क्या आई योत शुक्रगुजार बहुत शुक्रगुजार सरकार कि आव ये मैगडम मुश्किल गया मुश्किल ना गाड़ी क्या गाड़ी हंद प्रॉब्लम सही रोड खस्त रोड गोमुत ये गई वरी वन डिपार्टमेंटस रोड. देखिए मुज़फ़्फ़र साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ पे आए और डेवलपमेंट कामों का जायज़ा ले लिया. जो कि ये रोड है सिरगन हालन, ये 1.7 किलोमीटर टोटल लेंथ है. यहाँ के लोगों की ये बड़ी देरीना डिमांड थी कि इस रोड को मैगडमाइज किया जाए जी, क्योंकि हमने ये रोड लिया था, हमने इसका प्रपोजल बनाया था नाबार्ड में बहुत सालों से, वो अप्रूव नहीं हुआ. तो अब हमने इस साल में जो CNT का प्रोग्राम हमें आया, हमने उसमें ये सिरगन हालन का रोड प्रायोरिटी 1 में रखा है. तो हमने आज कंप्लीट कर दिया है और अब इसमें रहता है आगे 1 किलोमीटर, उधर ऊपर गुजर बस्ती रहती है. तो हमें इंशाल्लाह जो आने वाला CNT प्रोग्राम होगा अगले साल का. तो नाजरीन वो कोशर खबरनामा शामन 7 बजे सब्द तो बे मुलाकात. फिलहाल दी इजाजत, खुदा सवाल.